కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన 2024-25 ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్పై విపక్షాలు ఫైర్ అయ్యాయి. లోక్సభ ఎన్నికల ఓటర్లను ఆకట్టుకునేలా గారడీ మాటలు చెప్పారని విమర్శించారు. బడ్జెట్ వాస్తవ పరిస్థితులకు పూర్తి విరుద్ధంగా ఉందన్నారు. పేద మధ్యతరగతి ప్రజలను మరోసారి మోసం చేసేలా బడ్జెట్ రూపొందించారన్నారు విపక్ష నేతలు. One of the shortest speeches on record in the budget, and not very much came out of it. As usual, a lot of rhetorical language, very little concrete on implementation. Some serious questions about areas of omission. No reference to the success or failure of the PLI scheme, which is taking so much money. She talked about foreign investment without acknowledging that investment has come down significantly. She talked, frankly, about a number of things that are couched in vague language like for confidence and hope and so on. But when it comes to hard figures, there were very few figures available. For example, she talked about foreign direct investment without acknowledging that it has come down as a percentage of GDP, not gone up. She talked about, she didn't talk about unemployment, which has gone up to record levels. She didn't talk about youth unemployment. She didn't talk about declining female labor participation when talking about Nari Shakti. So there were so many omissions. I must say that this is going to be a very, very disappointing speech in terms of being couched entirely in generalities and without enough substance, nor any willingness to address the specific problems of the economy. She could have taken credit for certain things and challenged certain things, but instead what she gave us was nothing but unvarnished PR kind of rhetoric. So GDP has been given the new definition, that is governance, development and performance under the leadership of Prime Minister. Yeah, the GDP I see is government disruption. I see not just not development, but rather, frankly, demographic betrayal of the young. And when I see P, I see poverty rising and particularly inequality at the bottom echelons of our society. So GDP has a very different meaning in what we are seeing in the country than what she is saying. इस बजट नो बिल्कुल इस बजट खाली खोखला सीगा, कुछ भी नहीं सीगा. खास तौर ते भावें किसानां वालों देखा जाए, युवा नौजवान किसी वाल कुछ भी नहीं सीगा, सिर्फ अपनी खोखली पीठ थपथपान दी गल सी. किते ना किते अज दा दिन सीगा जिथे तुहानू 2014 च जिहड़े तुसी वादे लोकां नू कीते सी कि हिंदुस्तानियां दे अच्छे दिन आणगे, हर खाते विच 5 लाख रुपए आणगे, किसानां दी आमदन नू दुगना कीता जाऊगा, 5 करोड़ नौजवानां नू रोजगार मिलूगा. अज तो ओहदा वेरवा देना सीगा भी किन्ने नौजवानां नू तुसी 10 सालां च रोजगार दिता हैगा, किन्ने किसानां दी तुसी आय दुगनी करती है, किन्ने हिंदुस्तानियां दे अच्छे दिन. एक पासे तुसी कहंदे हो 25 करोड़ नौजवानां 25 करोड़ परिवारां नू असी पॉवर्टी लाइन तो उपर चक्या है, उन्हां वास्ते कुछ नहीं. सो ना किसान वास्ते कुछ. अच्छा, औरतां दी बहुत वड्डियां वड्डियां गल्लां, पर जिवें खोखला 33% रिजर्वेशन सी अज इन्नी वड्डी बहुमत दे नाल कहंदे भी. देखिए, एक तो ये इंटरिम बजट होगा, इलेक्शन आने को है और उसके बाद पूरा बजट पेश किया जाएगा जब सरकार बन जाएगी. तो उम्मीद यही है कि जो 10 साल पहले वादा किया था देश की जनता के साथ 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अब महंगाई से लोग रोज जूझ रहे हैं. रिकॉर्ड ब्रेकिंग महंगाई है, पर केंद्र सरकार उस पर संज्ञान नहीं ले रही है. 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था देश के युवाओं के साथ. देश के युवाओं के साथ धोखा हुआ है. नौकरी के नाम पर वो लोग दर बदर भटक रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहे हैं. अग्निवीर स्कीम लाकर आपने आर्मी की भर्ती में भी जिस तरीके से कटौती की है वो देश ने देखा है, देश ने प्रोटेस्ट देखे हैं. फिर आपने कहा था कि आप करप्शन खत्म करेंगे. करप्शन खत्म करना तो दूर, जो पूंजीपति है वो और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है और गरीब होता जा रहा है. फिर आपने एक और जुमला छोड़ा था कि आप 15-15 लाख सबके अकाउंट में लाएंगे. आप इसमें से कोई भी 1/3 भी काम कर लें. या इस बजट में किसानों के बारे में, किसानों को पहले वादा किया आमदनी दुगनी होगी, फार्म लॉज लाते हैं, काला कानून लाते हैं, फिर इसको विड्रॉ करना पड़ता है. The people of the country are already disappointed. Moreover, if you realize that all the incentives are given to the rich companies, the performance linked incentives are not going for the really deserving companies, but for all the other companies which are manipulating it. Overall, I will say that people are rejected with this budget. They should have come something else better for this. असली बजट तो जुलाई में आएगा. इंट्री बजट में कोई ऐसी बात नहीं, मुझे कुछ बताना नहीं है. ये तो वही पुराना बजट चल रहा है, जो काम में है वो करनी है. हम उम्मीद करते हैं कि
लोगों को फ़ायदा हो। हमारी तो यही है कि वतन आगे बढ़े, तरक्की करे, इन्फ्लेशन डाउन आए, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, इंडस्ट्रीज बढ़े। हमारी यही तो ख्वाहिश है। टूरिज्म बढ़े। G20 में जो आए थे, टूरिज्म की मीटिंग हुई थी कश्मीर में। हम उम्मीद करते हैं कि बाहर से और लोग आएंगे टूरिज्म में। और अभी बर्फ़ पड़ी है अच्छी, तो स्कीइंग के सीज़न शुरू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वो भी आएंगे। बहुत अच्छा है, वो लखपति बनेगी, इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, उससे घर और भी आबाद होगा। हम उम्मीद करेंगे कि वो नरम रहेंगी। ये ना हो कि फिर शादियां टूट जाएंगी, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल की हालत तो वैसी हो रही है। बजट में कुछ नहीं होने वाला। इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को सिर्फ जुमले और शब्दों का अच्छा प्रोनाउंसिएशन, शब्दों का अच्छा आचरण मिलेगा। और जो भी अगर कुछ है सब्सटेंटिव, अगर कुछ ठोस है इस बजट में, तो सारे सबसे बड़े जो उद्योगपति जो नए उद्योग में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए इस बजट में कुछ मिलेगा। और वही इस बजट में हमने देखा। देखिए, मुझे लगता है इसी में सरकार की अहंकार दिखती है। निर्वाचन हुआ नहीं है और ये अपने आप को विजेता घोषित कर रहे हैं। जनता जनार्दन है और कोई भी राजनीतिक दल भारत के जनता से अपने आप को बड़ा नहीं समझता।